Hello students, I am Drashti Patel from Saraswat International Academy. I teach statistics of 12 commerce. Chapter number 2 linear correlation part 3. In previous video we had learned scatter diagram. Now today I would teach you Karl-Pearson product moment method. So first, when value of covariance and standard deviation of both the given variables x and y are given, correlation denoted by R. So R equal to covariance xy upon standard deviation of x into standard deviation y. So equal to covariance xy upon sx into sy, where covariance xy equal to sigma x minus x bar into y minus y bar upon n, where sy equal to root sigma x minus x bar whole square upon n into sy, here correction, here y की जगह x होगा, okay, and then sy equal to root y minus y bar whole square upon n, okay. Now r equal to sigma x minus x bar into y minus y bar upon n into sx into sy. ये फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, r इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार इंटू वाई बार अपन n इंटू एस एक्स इंटू एस वाई. ये सारे फार्मूला हमें बाय हार्ट करने हैं बिकॉज स्मॉल सम में ये सारे फार्मूला हमें याद करने हैं, ओके. When the mean x bar and y bar of given observation x and y are respectively integers, okay, जब भी x bar and y bar फाइंड करेंगे और उसकी वैल्यू इंटीजर आएगी तो r कैसे फाइंड करें देखते हैं. फॉर्मूला सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपन रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू रूट सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर, ओके. When observations of both the given variable x and y are very small, which can be easily multiplied and square, then r equal to n sigma xy minus sigma x into sigma y अपन रूट में n sigma x square minus sigma x whole square into रूट में n sigma y square minus sigma y whole square, okay. Then when the observations of both the given variables x and y are very large numbers, okay, x और y के वेरिएबल क्या होंगे, वेरी लार्ज, एंड देयर रिस्पेक्टिव मीन x बार एंड y बार बोथ और आइदर x बार और y बार आर इन फ्रैक्शन, ओके. तभी कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस वन, r इक्वल टू स्मॉल n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v अपन स्क्वायर रूट में n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u होल स्क्वायर इंटू रूट में n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v होल स्क्वायर, वेर u इक्वल टू x माइनस a और u इक्वल टू x माइनस a अपन सी एक्स माने कॉमन, v इक्वल टू y माइनस b और v इक्वल टू y माइनस b अपन सी वाई, ओके. सी वाई माने जो वेरिएबल y है उसमें कॉमन. Here a, b, cx and cy are suitable real constants and cx greater than 0 and cy also greater than 0. For the given information of two variables, any formula of Karl-Pearson gives the same value of correlation R. आप तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो. Now interpretation of value of correlation coefficient. So first, if r equal to 1, we can say that there is a perfect positive correlation between two variable, okay. r equal to minus 1, then we can say that there is a perfect negative correlation between two variables. Third, if r equal to 0, then we can say that there is a no linear correlation between two variables. Fourth, if 0 लेस देन r लेस देन 1, r की वैल्यू 0 एंड 1 के बिटवीन की आई, ओके, देन वी कैन से दैट देर इज अ पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. एंड लास्ट, इफ माइनस 1 लेस देन r लेस देन 0, देन वी कैन से दैट देर इज अ पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ओके. Now properties of correlation coefficient. So first,
The value of the correlation coefficient lie in the interval -1 to 0. ओके, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का आंसर ऑलवेज क्या होगा, -1 और 1 के बीच में ही आएगा. ओके, सो हियर -1 लेसर इक्वल r, लेसर इक्वल 1. सेकेंड, the correlation coefficient is free from unit of measurement. Okay, whatever many be the unit of two variables, r does not have any unit of measurement. r जो हम फाइंड करेंगे उसका कोई भी यूनिट आएगा नहीं. थर्ड, the correlation coefficient between variables x and y is same as the one of the between x and y. For example, r ब्रैकेट में एक्स वाई इक्वल टू आर वाई एक्स. ओके, नंबर 4, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट डज नॉट चेंज विद द चेन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओरिजिन एंड स्केल. Explanation, suppose the correlation coefficient r is to be obtained between variable x and y. Now first we define the transformant variables u and v as a follow. u equal to formula हमने आगे क्या देखा, x minus a upon cx and v equal to y minus b upon cy, where a, b, cx, cy are suitable real constant and cx greater than 0 and cy also greater than 0. Okay, now this property of r implies that the correlation coefficient between u and v and the one between x and y are equal. So r ब्रैकेट में uv इक्वल टू r ब्रैकेट में xy इक्वल टू स्मॉल r. फिफ्थ, r ब्रैकेट में माइनस एक्स माइनस वाई, तो माइनस बाहर निकलेगा तो क्या होगा, r ब्रैकेट में एक्स वाई. देन r x माइनस वाई होगा, माइनस बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, माइनस r ब्रैकेट में एक्स वाई. If the sign of any one of the two variables x and y is changed, then the sign of the correlation coefficient also change. Here r bracket में minus x minus y, so minus minus plus, so answer is r x y. Okay, if the sign of both the variables are changed, then the sign of the correlation coefficient remain unchanged. Okay, now example 5. The following information collected by taking a sample of 7 candidates having nearly same intellectual ability to know the effect of last day preparation, a completely examination of general knowledge on the result on the examination. Okay, यहाँ हमें दो वेरिएबल दिए हैं. फर्स्ट, रीडिंग आवर ऑफ लास्ट 3 days एंड सेकेंड, मार्क्स ऑब्टेन इन एग्जामिनेशन. ओके, तो फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट. ओके, यहाँ देखो कोरिलेशन कोएफिशिएंट माने आपको आर फाइंड करना है. ओके, किसके बीच में आर फाइंड करना है, तो रीडिंग आवर ऑफ द लास्ट 3 days एंड मार्क्स ऑब्टेन बाय द एग्जामिनेशन. ओके, और बाद में इंटरप्रेट भी करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ टोटल हाउ मेनी कैंडिडेट्स, तो हियर वी हैव अ 7 कैंडिडेट्स. 1 2 3 4 5 6 7, so n equal to 7. okay, so first of all we find out x bar. x bar हम कैसे फाइंड करेंगे, टोटल जो x वेरिएबल है उसका टोटल करके नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं 7, so 231 upon 7, so आंसर इज 33. देन फाइंड आउट y bar. y bar कैसे फाइंड करेंगे, जो हमें y वेरिएबल है ये उसका टोटल करके नंबर ऑफ 7, so सिग्मा y 504 upon 7 इक्वल टू आंसर इज 72. चलो यहाँ x बार एंड y बार की वैल्यू कैसी आई, इंटीजर आई, सो वी कैन यूज दिस फार्मूला. 1 मिनट, ये रहा, ये फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ देखो व्हेन मीन x बार एंड y बार ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन x एंड y आर रिस्पेक्टिवली इंटीजर, तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपन रूट में सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू रूट में सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर. ओके, सो हियर फर्स्ट राइट फार्मूला, ये रहा फार्मूला लिख लिया. चलो फार्मूला लिखेंगे उस पर से पता चलेगा कि हमें कौन सी कॉलम चाहिए. सो फर्स्ट रीडिंग अवर x
एंड मार्क्स वेरिएबल वाई लिख लिया, हमें एक्स बार एंड वाई बार ऑलरेडी फाइंड कर दिया, टोटल है ये। ओके, देन क्या चाहिए, x माइनस एक्स बार। ओके, उसके बाद y माइनस वाई बार, माने ये दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए। सो x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार। और नीचे फॉर्मूला में आप देख सकते हो सिग्मा x माइनस एक्स बार चाहिए। सो सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर एंड सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर। ओके, नाउ फर्स्ट x बार माइनस एक्स बार, चलो हमारा x बार यहाँ क्या है, ये रहा 33 है। कितना है, 33। तो यहाँ फर्स्ट क्या करेंगे, 25 माइनस 33, तो क्या आया आंसर, -8। 38 माइनस 33, तो आंसर क्या आया, 5। बाद में 30 माइनस 33 -3, 28 माइनस 33 -5, 34 माइनस 33, आंसर इज 1, 40 माइनस 33, आंसर इज 7, 36 माइनस 33, आंसर इज 3। ओके, और इसका टोटल ऑलवेज 0 ही होना चाहिए। ओके, तो हमें पता चल जाए कि हमारा कुछ भी गलती नहीं है। नाउ वाई बार हमारा क्या है, 72। ओके, सो वाई माइनस वाई बार क्या करेंगे, 65 माइनस कितना है वाई बार, 1 मिनट, 72 है। ओके, सो हम क्या करेंगे, 65 माइनस 72, सो आंसर इज -7। 75 minus 72, so answer is 3. 68 minus 72, so answer is -4. 70 minus 72, answer is -2. 72 minus 72, so answer is 0. 79 minus 72, so answer is 7. 75 minus 72, so answer is 3. Again total 0. Okay, so कुछ भी हमारा गलत नहीं है। नाउ हमें क्या चाहिए, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, माने ये दोनों कॉलम का क्या चाहिए, मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये रहा हमने मल्टीप्लाई किया, बाद में उसका टोटल करेंगे। सो टोटल इज 151। चलो उसके बाद हम क्या चाहिए, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर चाहिए, माने ये जो कॉलम है उसका होल स्क्वायर चाहिए। सो -8 का होल स्क्वायर क्या है, 64, 25, 9, ऐसे करके हम होल स्क्वायर करेंगे, बाद में क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। सो टोटल इज 182। और अभी लास्ट में हमें क्या चाहिए, y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर चाहिए, माने ये जो कॉलम है उसका होल स्क्वायर। सो देखो आप, -7 इंटू -7 क्या आया, 49, 3 इंटू 3 9। वैसे ये कॉलम का हमने क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया, तो ये हमें मिल गया। सो टोटल कितना आया, 136। चलो सारे वैल्यू फाइंड आउट कर दिए, अभी सारे वैल्यू हम ये फॉर्मूला में रखेंगे। सो हियर आर इक्वल टू फॉर्मूला सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपन रूट में सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर। सो चलो सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार कितना आया, 151, तो हमने रख दिया 151 अपन रूट में सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर कितना है, 182, तो देखो यहाँ हमने रख दिया। एंड सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर कितना आया, 136, तो मैंने यहाँ रख दिया। ओके, सो 151 रूट निकालेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। चलो तो क्या आंसर आया, 0.9598। सो राउंड फिगर आर इक्वल टू 0.96। सो वी कैन see that the value of r is very nearest to 1। अब देख सकते हो 0.96 किसके नज़दीक है, 1 के एकदम नज़दीक है। सो देयर इज़ अ हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन between the reading hours and marks, hence it can be said that generally at last days reading hours are more marks can be obtained in examination. Okay, I had given homework in previous video, so answer is here. So first, points on the graphical representation line around a line which is going in upward direction from left to right. Okay, the change in the price of ball pen and monthly supply are in the same direction but not in a same proportion, hence all the points are not on the same line। आप देख सकते हो पॉइंट एक लाइन पे नहीं है। सो वी कैन से दैट देयर इज अ पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। सेकेंड, points on the graphical representation line around a
line which is going in upward direction from left to right. यहाँ भी आपके points left to right upward side जा रहे हैं. The changes in advertisement cost and price are in the same direction but not in a same proportion. Hence all the points are not in a same line. यहाँ भी एक line पे कोई भी point दिया आया नहीं है. So we can say that there is a partial positive correlation between x and y. Now third, points on the graphical representation lie around which is going in downward. आप देख सकते हो डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नीचे जा रहा है डाउनवर्ड. ओके, द चेंजेस in the minimum days temperature and the sale of woolen clothes are in the opposite direction but not in the same proportion. Okay, अब एक लाइन में एक भी पॉइंट दिया नहीं है. Hence all the points are not on a same line. Okay, so we can say that there is a partial negative correlation between x and y. Thank you.